मैंने प्लीज, वो तो जो आपको मौका दिया आप उसको क्वेश्चन नंबर 166। Answer is laid on the table of the House. Question number 166. Answer is laid on the table of the House. श्री अनुभव मोहंती जी। Through you, I just want to ask Honorable Minister, and I want to know, what is the correct definition of Niti Aayog for a poverty-free country? Is it with employment or with financial support from the government? And does this also include the 2 crore jobs that were announced by the Honorable Prime Minister in 2014 and the present government? If yes, then how is the government daydreaming of a poverty-free country by 2022? Thank you. Madam Chairman, Niti Aayog has been constituted. हुसैन दलवाई जी, हुसैन दलवाई जी, कृपया आप बैठ जाएं। नहीं, कृपया आप बैठ जाएं। जब आपको पारी दी जाएगी तब आप सवाल करेंगे। जी, प्रभात झा अनुपस्थित हैं, इसलिए जो अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह पे जो जी माननीय मंत्री जी। Niti Aayog, National Institute for Transforming India, has been envisaged by the Prime Minister and this government to look into the sustainable development goals which this country along with 193 other countries have signed. The first goal of sustainable development goals is to eradicate poverty. By the year 2030, abject poverty must be eradicated. And as defined by the United Nations, abject poverty is for those people who are living on $1.25 per day. Now, this government is not daydreaming. It has made valiant efforts and which have also borne fruit over the past 4 years. And it has addressed the redressal of poverty in India at least by a 3-pronged total strategy. First of which is to provide basic services to the people of India, especially those who are poor. And these basic services require things like food, shelter, access to social parameters, and also giving them a job. So I just want to say to the honourable member that we have now taken up the idea of eradicating poverty on a war footing, and we have, first of all, food security is a basic requirement. So food security is something that the government of India is footing the bill in toto. Secondly, we have the Jan Dhan Yojana, by which 32 crore accounts have been opened in India. And if I may just say so, when India gained independence in 1947, this was the total population of India. Over the past 4 years, this government has been able to open 32 crore account, which is as much as the population India had when it gained independence. And direct benefit transfer to all these account holders is being done through various programs that the government of India has initiated. I would also, and the idea, see the idea is, madam, the idea is to add... मंत्री जी, नहीं, देश पॉवर्टी फ्री बनेगा 2022 तक। मैडम मैं बता रहा हूँ, पकोड़े तलकर देश बनेगा पॉवर्टी फ्री, ये उत्तर दे दे। एम्प्लॉयमेंट कितने जनरेट हुए हैं देश में? मैडम अगर ये बोलने देंगे, मैं तो समझता था कि सभ्य तरीके से बातचीत करेंगे, तो आप तो मेरा जवाब पूरा होने ही नहीं दे रहे, उससे पहले ही आप मेरे को टोक रहे हैं। कृपया आप संक्षिप्त में अपना जवाब दें। मैडम, पॉवर्टी एलिवेशन के वास्ते मैंने बताया कि 3 किस्म की जरिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना है,
दूसरा सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट एंड कृपया- इनकम जनरेशन। कृपया सुनना नहीं चाहते। आई थिंक दिस शुड बी एक्सपांस फ्रॉम द रिकॉर्ड, दिस शुड बी एक्सपांस फ्रॉम द रिकॉर्ड, and or he should ऐसा inform. You are denigrating the house. Yes, sir. Please, please, house. ऐसा- Please advance the word or let him withdraw. मैं इसको देखूंगी रिकॉर्ड पे, और जो होगा मैं उस पे। मैडम, राज्यसभा मंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि संक्षिप्त में आप। माननीय मंत्री जी ने वो शब्द कहा है उसको विड्रॉ कर देंगे, और जरूर करना चाहिए। हम सभी राज्यसभा का सम्मान करते हैं। चलिए, मैं जवाब दे दूं जी अब इनका। आप अपने इनकम जनरेशन के वास्ते मंत्री मैडम, जी, आपसे जो सवाल किया गया है, कृपया आप हम उसी उसका का जवाब दे रहे हैं दें। मैडम। पावर्टी के ऊपर सवाल है। पावर्टी की 3 pronged स्ट्रैटेजी है, उसके विषय में भूमिका निभा रहा था, उससे बीच में अपना दखल हो गया। अब जब इन्होंने पूछा है, आप भूमिका जो मत इन्हों- दीजिए, बल्कि सवाल का जवाब। जो इन्होंने पूछा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस किस्म से हो रही है, मैं 3 तरीके आपको बताना चाहता हूं। एक तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके माध्यम से, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका जिक्र मैंने अभी किया कि 32 करोड़ खाते। ऐसा है कि हम दूसरे को भी सवाल का मौका देंगे। आप अपने जवाब जो आप दें संक्षिप्त में दें, ताकि जो लोगों ने सवाल किया है वो सेटिस्फाइड हो जाएं। आपने जो जवाब दे रहे हैं वो पूरे पेपर में ले हैं, और जो भी है उस मुद्दे पे लोग जान जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने सवाल किया है, कृपया आप उसी का जवाब दें। मैडम, पेपर पे ले नहीं हुआ, पेपर तो कुछ और था। क्वेश्चन- मैं तो पॉवर्टी एरिगेशन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कीजिए मंत्री जी। चलो, मैं तीन जो मंत्री जी, आप धाराएं हैं, जो 3 मुख्य धाराएं हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरों का और भी इनकम जनरेशन के लिए, उसका जिक्र कर देता हूं, फिर मैं बैठ जाता हूं। एक है मनरेगा, दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, और दीनदयाल अंत्योदय मंत्री योजना। जी, मंत्री जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनका जवाब जो है लिखित रूप में आप भेज दें। दूसरे श्री त्रिचि शिवाजी, आप मोहंती जी, आपके सवालों का जवाब लिखित रूप में चला जाएगा। तिरुचि शिवाजी, श्री तिरुचि शिवाजी। बोलने से नहीं होगा, पकौड़े तलने से भी नहीं होगा। मैं बता दूंगा, अगर बोलने से तो ना। वही बता रहे कि 1 करोड़ लोग कृपया वो नहीं है। मोहंती जी, Thank you, Madam कृपया Chairperson. सहयोग करें। See, one of the strategy for New India, that is 2022, the government has assured that the farmers' income would be doubled. I just would like to know from the minister, when the agricultural cultivable lands are decreasing year by year, and when the investment rates on irrigation is also declining, what is the strategy or plans you have in plan to double the income of the farmers? I thank the member for bringing the focus back onto the question that was asked. We have a draft strategy document which is in the pipeline, and it includes poverty, it includes agriculture. And by consultations, firstly with all kinds of civil bodies, thereafter with NGOs, thereafter with government agencies, and now with state governments and chief ministers, we are formulating this policy. And by this policy, once it comes out, we can have a discussion on it, whether it should include anything else or not. But by 2020, India is committed to raising the farmers' income twice over, and also eradicating abject poverty by 2030. नेक्स्ट श्री जयराम रमेश जी। कृपया It is a draft document which is under process. जयराम So you रमेश जी। can only ask that question. Madam Vice Chairman, my question to the Honourable Minister relates to the measurement of poverty, without which we will not know whether India is free from poverty or not. For the last 50 years, the National Sample Survey Organization has been carrying out consumer expenditure surveys to measure poverty. The last such survey was carried out in 2011-2012. I want to know from the Honourable Minister, when will the latest NSS survey on poverty rates in India come out, and when will they be made public? Madam, the last
poverty line guidelines that were accepted by the Government of India was in 2011 and 12 by a committee appointed to find out who was under the poverty line. In 2011 and 12, the Tendulkar Committee submitted its report whereby a daily expenditure of 38 rupees per person in rural areas was considered to be below the poverty line. Rather, 28 per person. प्रकाशित मुझे ये मैडम, when will the latest survey be published? That's all. आपने ये भी पूछा भाईजान, जरा सबक तो कहिए। आपने ये भी पूछा। दूसरा मैडम, आज के दिन पॉवर्टी लाइन के नीचे कौन है और कौन नहीं है, ये प्राथमिकता भारत सरकार की नहीं है। आज के दिन डेप्रीवेशन इज द बेस लाइन, किसके पास क्या नहीं है। पॉवर्टी इज समथिंग दैट इज चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. Today it is say 100 rupees per day. In 5 years it might become 200 rupees. But today for the Government of India, deprivation is the criteria. Who does not have anything in standing last in the line should be addressed first. Second question, 167. Question. Supplementary. I am happy from the reply of the Honorable Minister and receipt of the women immovable property, तीन हो गए specified चुके। property from the relatives not taxable. Further, the Honorable Minister has taken up amendment on Section 64 of IT Act 1961. For not included income arises from the assets transferred by the individual to his wife or son's wife as welfare of measuring for women. I would like to know whether the government has also taken any other such steps for making women financially independent and for other overall empowerment. मैडम, मनीष सतीश ने पहले तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा इस दशा में जो उत्तर जो दिया गया है, उत्तर के प्रति उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। यह प्रश्न मूलतः वित्त मंत्रालय के निर्णय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है और वित्त मंत्रालय के द्वारा महिलाओं को और बाकी लोगों को भी जो सुविधा प्रदान की जाती है उसका उत्तर विवरण में दिया गया है। उन्होंने जो 1961 के धारा 64 का जो उल्लेख किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस संबंध में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के द्वारा पत्नी अथवा पुत्र वधू को जो हस्तांतरित संपत्ति होती है, उस संपत्ति से जो आमदनी प्राप्त होती है, उस आमदनी को आय में शामिल न करने के लिए आयकर अधिनियम की 1961 की धारा 64 में संशोधन किया जाए और ये वित्त मंत्रालय के लिए भेजा गया है, वहां से आने के लिए विचाराधीन है और इसके लिए आयकर अधिनियम में जो है ना संशोधन करने की आवश्यकता है और उपयुक्त समय पर वित्त मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। Second supplementary. Will take efforts for increasing the overall exemption limit of women and for reduce of gender pay gap. प्रश्न वित्त मंत्रालय से संबंधित है, अतः इस संबंध में वित्त मंत्रालय से जानकारी लेकर माननीय सदस्य तक भेज दी जाएगी। श्री रामनाथ ठाकुर जी। माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि वित्त विभाग से कब तक इनको अनुमोदन आ जाएगा और जो महिलाओं को सुविधा उपहार के बारे में सुविधा दी गई है और जो बाकी बचे हुए हैं अन्य महिलाओं के द्वारा दी गई उपहार के, वो वित्त मंत्रालय से कब तक आ जाएगा? मैडम, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया अपने उत्तर में, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजा गया है और इसके लिए आयकर अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है और वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट के समय ही इस तरह के जो निर्णय लिए जाते हैं वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विचाराधीन है। श्री महेश पोद्दार जी। महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देने के क्रम में झारखंड सरकार ने एक योजना चालू की है जिसके तहत
लाखों महिलाओं को उनकी संपत्ति मात्र 1 रुपये के टोकन में रजिस्ट्री की जाती है। महोदय, मेरा प्रश्न मंत्री महोदय से होगा कि इस योजना की सफलता को देखते हुए क्या दूसरे राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं लागू की जाएगी ताकि महिलाओं के नाम से अधिक संपत्ति और उनको गिफ्ट के तौर पे या खरीद बिक्री के तौर पे दी जा सके। सरकारों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग तरह के निर्णय जो है ना महिलाओं के लिए इस तरह के लिए लिए गए हैं और मैंने जैसा कि पहले भी पूर्व में कहा इस तरह के निर्णय जो है ना वित्त मंत्रालय के निर्णय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और मैं सदस्य की भावना जो है ना उनका मैं स्वागत करता हूं और वित्त मंत्रालय से इस संबंध में हम अपनी ओर से जो है ना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा माननीय सदस्य की भावनाएं उन तक प्रेषित की जाएंगी। श्रीमती सरोजनी हेम्ब्रम जी। महिलाओं को दे दो चेयरमैन मैडम, सरकार और समाज चाहती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में सामने आएं, केवल पुरुष के रोजगार के लिए निर्भर ना करते हुए खुद अपनी कुछ कमाएं, व्यापार करें या नौकरी करें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं, ऐसी रोजगार महिलाओं के लिए रोजगार के ऊपर इनकम टैक्स में कुछ कंसेशन है क्या? अगर है तो क्या क्या है? अगर नहीं है तो सरकार इस बारे में क्या विचार करेंगे? धन्यवाद। मैडम, प्रश्न ही मूलतः जो है ना वित्त मंत्रालय से संबंधित है, इसका महिला बाल विकास मंत्रालय से सीधा संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168। उपसभापति महोदय, क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168। मिनिस्टर, स्टेटमेंट इज डिलेड ऑन द टेबल। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न गुजरात में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत कृपया जया जी। कितने लोगों को अधिकार पत्र दिए गए हैं और कितने लोगों को अधिकार पत्र लेने का पात्र होने के बावजूद? कृपया शांति बनाए रखें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है गुजरात में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत कितने लोगों को अधिकार पत्र दिया गया है और कितने लोगों को अधिकार पत्र लेने के पात्र होने के बावजूद अभी तक अधिकार पत्र नहीं दिया गया है? कारण बताएं। प्रश्न में मैं बताया है 84,402 आदमी को पात्रता माने अप्रूवल है, उसमें से 83,754 लोगों को दिया गया है। 648 लोगों को अभी तक प्रोसेस में है और उनको भी दे दिया जाएगा। ये मैंने माननीय सदस्यों को दिया है। सेकंड सप्लीमेंट्री। मेरा सवाल ये है मंत्री जी से, जिन लोगों को अधिकार पत्र दिया गया है और मेरी जानकारी में ऐसा है कि आज तक कम से कम 16-17 साल होने जा रहा है, उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो लोगों को अधिकार पत्र दिया गया है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसका कारण क्या है? रजिस्ट्रेशन हुआ है और उनका संख्या 67,000 है, बाकी प्रोसेस में है और इसमें गुजरात हाई कोर्ट में भी केस है और इसके बारे में वो भी इंटरव्यू कर रहा है, इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे केस में उसका कारण है कि डुप्लीकेट क्लेम है, आप एक फैमिली का 2 मेंबर क्लेम किया है, कोई कहीं कहीं महिला क्लेम कर रहा है तो हस्बैंड भी क्लेम कर रहा है और ऐसा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके कारण नहीं हो रहा है। ये होगा लेकिन हम 84 जो चिन्हित किया गया है 84,402 इन सभी को पट्टा दिया जाएगा। नेक्स्ट विनय विश्वाम जी। Thank you, ma'am. Ma'am, this Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers acts, which we usually call as Forest Rights Act only, FRA, it's a landmark legislation of the UPA government first, in the passing of which I am proud to state that the left also played a historic role. देखिए
Ma'am, but the implementation. विश्वाम जी, ये सवाल गुजरात से जुड़ा हुआ है, No, no. कृपया आप This is not a Gujarat issue. It's a national issue. नहीं, ये No, सवाल no, जो है it's a national issue. The Forest Rights Act. गुजरात नहीं। No, I know, विश्वाम जी, I know it. I would like to raise an important issue which is concerned the whole country, the tribes of the country as a whole. So I believe that this is the place where I can raise an issue. My only point is this, the minister knows it. In the act it says that the upper limit is mentioned. On a particular date, the land in possession on a particular date is mentioned, is 10 acres. But in many states, including in Kerala and Gujarat, the lower limit is mentioned as the land which is at that date in possession. Sometimes 5 cents, one time 2 cents, sometimes 3 cents. Sir, a tribal family, a traditional forest dweller, with this 3 or 5 cents, what can they do? Sir, ma'am, the forest dwellers, the tribes, they are the real saviors of the forest. They are the protectors. My point is that, can the government try to state specifically that the minimum area of land allotted to the tribe should be 1 acre? 1 acre. The law has to be changed. The law needs to be changed. That's why we are here. इसमें आप इस तरह से बात ना करें। If we are for the tribes, we should change the law. विश्वाम जी, आपने सवाल कर दिया। My सवाल is that the minimum land should be made 1 acre for the tribal people because they are the saviors, the protectors. So the act has to be changed. My point is that will the government be ready for that? कृपया आप स्थान ग्रहण कर लें। You are giving forest land for all the corporates, all the big ones, but not for the tribes. विश्वाम जी, सवाल ही नहीं किया। क्वेश्चन आवर है विश्वाम जी, इसलिए आपने सवाल, आपका जो है वो सवाल पर आप ये रहे, केंद्रित रहे, इधर उधर ना भटके। कृपया आप बैठ जाएं। मंत्री जी। No. इतना जमीन में कब्जा में है, उसका पोजीशन में है, उसको दिया जाएगा। अगर 1 एकड़ का लिमिट अगर किया जाएगा तो ट्राइबल का हित का विरुद्ध में जाएगा। ऐसा हम सरकार में नहीं करेंगे। जितना कब्जा में वो रखा है उतना उसको पट्टा मिलेगा। श्री मधुसूदन मिस्त्री जी। मंत्री जी, मैं आपका ध्यान ये आकर्षित करना चाहता हूँ, गुजरात के अंदर पूरी इस मूवमेंट के इशू 1985 से मैंने चालू की थी उस वक्त पे, और सरकार से 1,22,000 एकड़ ज़मीन 67,000 किसानों के लिए, आदिवासी किसानों के लिए ली थी, और उसमें से ये कानून श्रीमती सोनिया गांधी जी की है तो अध्यक्षता के अंदर ये बनाया गया था उस वक्त पे। आज स्थिति ऐसी है गुजरात में। मंत्री जी यहाँ देख लीजिए जरा, पहला फिर बाद में आप पत्ते घुमाइए, क्योंकि मेरा सवाल आप फिर बाद में समझेंगे नहीं। टाइटल ये सनद की बात है, सनद यानी ओनरशिप। आप जो देते हो 1989 के अंदर गुजरात के अंदर, जब 1980 से पहले जो ज़मीन जोतते थे उनको अधिकार पत्र टेम्पररी इसलिए दिया गया था कि जिसकी वजह से जंगल डिपार्टमेंट वाले उनको बेदखल न करें जो ज़मीन वो जोतते हैं। 2 इश्यू इसमें से खड़े पे हूँ, मंत्री जी से जवाब चाहता हूँ मैम। एक, अभी आपने जैसा कहा कि मेरे पास फॉरेस्ट ऑफेंस की रसीद है, 4 एकड़ ज़मीन है तो जोतने की, मुझे मिलती है 20 गुठा, 25 गुठा, 30 गुठा। 1 नंबर 2, आपने अधिकार पत्र दिए हैं और अधिकार पत्र के अंदर से कितने लोग बेदखल हुए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि गुजरात गवर्नमेंट को आप कब कहेंगे कि इनको सनद दीजिए, और सनद देने के लिए जब तो सर्वे कराए जाएंगे, वो सर्वे के पैसे गुजरात सरकार देगी, आप देंगे, और कब तक ये सर्वे होगा कि जिसकी वजह से उसको सनद मिले, टाइटल मिले। आप अधिकार पत्र देते हैं, टाइटल नहीं देते। मेरा आपसे ये सवाल है, जवाब दीजिए। तो एक तो कोई भी बेदखल का रिपोर्ट मेरा पास नहीं है, किसी को भी बेदखल नहीं किया गया है। ये पहले जान ले, हमने जो डिक्लेयर किया 83,000 कितना जो पट्टा दिया गया है वो कायम है, उसमें से कोई बेदखल नहीं है। मैडम, ये पट्टा देने का जो प्रोसीडियर है ये ग्राम सभा और उसके बाद आपका सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी है। ग्राम सभा में जो तय करते हैं कितना काबिज है, वो गांव का लोगों को अधिकार है, उसी में से प्रोसेस इनिशिएट होता है, जॉइंट वेरिफिकेशन होने के बाद दिया जाता है। तो इसलिए 4 एकड़ में काबिज है, 2 एकड़ हुआ ऐसा नहीं है, कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं है।
जो रिपोर्ट में प्रोसेस होता है उसी को फाइनली दिया जाता है। श्री लाल सिंह वडोडिया जी, श्री लाल सिंह वडोडिया जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से कृपया आप, मधुसूदन मिस्त्री जी कृपया आप स्थान ग्रहण कर लें। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि गुजरात के जो 18,000 गांव है, इसमें से जो वन विस्तार में गांव आते हैं, इसमें से 3,799 गांवों में वन अधिकार समिति बनी हुई है। तो ऐसे कितने गांव हैं कि जिसमें अभी भी वन अधिकार समिति का गठन नहीं हुआ है? तो सरकार कितने समय में सभी गांवों में ये वन अधिकार समिति बनाने का सोच रही है? नहीं सर, ये मेरे को जिलावार इसमें रिपोर्ट है, कौन सा जिला में क्या है, गांव बार तो नहीं है, लेकिन मैं आपको 1,82,869 जो क्लेम रिसीव हुआ था उसमें से 84,402 हम लोग दे दिया है। बाकी लैंड प्रोसेस में है, बाकी को भी हम दे देंगे। गांव बार डिटेल नहीं है, ये कमेटी हर गांव का अधिकार होता है कि वो उस गांव में जो वन अधिकार काबिज है उनको अगर कोई पट्टा लेना है तो उस गांव में अपना आप मीटिंग करके प्रोसेस करके वो अप्लाई करेंगे और उसको दिया जाएगा। इसे मैंडेटरी प्रोसेस है, तो इसलिए गांव से इनिशिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 169। Answer is laid on the table of the House. First, Respected Vice Chairman, Madam, the Joint Admission Board has proposed an additional 1,000 seats in IITs across the country and a 14% increase from the present strength in the admission for women. Sir, many IITs have doubted the said moves as they fear that such move will not be able to accommodate all these students due to the shortage of capacity in rooms, hostels, etc. So, my question is whether the government is considering to expand the capacities in all IITs. Thank you, sir. महोदया, मूल मुद्दा जो था वो बहुत अहम था कि इस बार पिछले साल या हर साल साधारणतः 40-50 हज़ार छात्र जेईई एडवांस क्लियर करते हैं, लेकिन इस बार 18,138 ही छात्रों का क्लियर हुआ, क्योंकि आखिर पेपर कैसा होता है उस पर भी निर्भर करता है। तो उसमें हमें ये लगा कि लगभग 11,000 से ज़्यादा पोस्ट भरनी है, तो इतना ऊंचा कट ऑफ से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की सीटें खाली रह सकती थी। और इसको देखते हुए हमने मंत्रालय से मैंने आदेश दिया, डायरेक्शंस दिए आईआईटी काउंसिल को कि एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, रिजर्वेशन कैटेगरी की एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, और इसलिए कट ऑफ को उस तरह से एडजस्ट करना है, नया कट ऑफ करो। तो नया कट ऑफ हुआ और मुझे खुशी है कि 31,000 छात्र उसके लिए पात्र हुए और 31,000 यानी 31,988 इतने छात्र पात्र हो गए। और उसमें मुझे खुशी है कि 12,000 इस बार 1,000 सीटें बढ़ी, जो आपने पूछा है। वी हैव इंक्रीज्ड सीट्स बाय 1,000 and out of 12,079 seats, I am very happy to announce that 11,961 seats have been filled and the OBC, SC, ST quota has been completely filled. second supplementary. Respected Vice Chairman, Madam, my second supplementary is due to the increasing intake capacity of the Indian Institute of Technology, the top 2.4 lakhs candidates clearing JEE main will be eligible to appear for the JEE advanced examination, and that 4,000 more students will be allowed to appear for the JEE advanced examination in May. As per the Joint Admission Board, what are the steps taken by the IIT to ensure adequate candidates are qualified for the seats reserved for SCs, STs and OBCs? Thank you, sir. As I said, SC, ST, OBC,
there is a quota because this is government institute. And there we have ensured on, मैंने तो पहल की पहले ही जब इसका रिजल्ट आया और पिछले साल 51,000 छात्र जेईई एडवांस में क्वालिफाई कर गए थे, अब ये इस बार केवल 18,138 आया और 12,000 छात्र भरने हैं, तो कौन छूटेगा? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी छूटेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने ऑर्डर किया, डायरेक्शंस दिए जो बंधनकारी होते हैं कि जसोसा को डायरेक्शंस दिए कि इसको ऐसा एडजस्ट करो, ये नंबर सफिशिएंट नहीं है सिलेक्शन के लिए। और अब जो हमारे आदेश के कारण हुआ उसमें 32,000 छात्र हो गए और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को 50% आरक्षण होता है और मुझे खुशी है कि ये पूरा आरक्षण मिला है। अब केवल 118 सीट्स वैकेंट है टोटल, क्योंकि उसमें मांग नहीं थी। कौन से कोर्सेज में मांग नहीं होती? एग्रीकल्चर, दुर्भाग्य भी है, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, फार्मा इंजीनियरिंग, क्योंकि फार्मा का दूसरी इंस्टीट्यूट्स है, एग्रीकल्चर के भी दूसरे इंस्टीट्यूट है, वहाँ लोग करना पसंद करते हैं, बायो इंजीनियरिंग एंड एमटेक। तो इसके बारे में अगले महीने में जब आईआईटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो उसमें हम ये विषय पर चर्चा करेंगे। श्री संतनु सेन जी। Madam, through you, I'd like to remind our Honorable Minister regarding a fact that the students who are appearing this joint entrance examination in their regional languages, they are not succeeding satisfactorily, as it was the case in our state of West Bengal also. And so far my knowledge goes, our Honorable Chief Minister, Madam Mamata Banerjee, has already expressed her observations to our Honorable Minister of Government of India. My humble submission before this government, before the ministry is, would our minister be kind enough, would our minister will be kind enough to consider those who are interested to write their papers in their regional languages? Thank you. It is conducted for years together in English and Hindi, and we have not received representation. If he is referring to a representation form, because Chief Minister of West Bengal has written to me on the NEET and not on this. श्री अशोक वाजपेयी जी। महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, देश के तमाम तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की अभिरुचि कम हुई है और बड़ी संख्या में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्थान रिक्त हैं। क्या महोदया, क्या इसका कारण ये भी है कि इनके रोजगार के भविष्य कहीं सीमित होता जा रहा है? क्या माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों से निकलने वाले बच्चों को रोजगार उनके लिए सृजित करने के रास्ते या उपाय खोजे जाएं? ये सच नहीं है कि रोजगार के अवसर कम हुए, उल्टे रोजगार के अवसर बढ़ रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि ओवर सप्लाई ऑफ सीट्स, क्योंकि पीछे ये लीगेसी प्रॉब्लम है। अनेक सालों से एआईसीटी ने जो भी आया उसको इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया और इंजीनियरिंग कॉलेज के सीटें इतनी बढ़ गई कि बहुत सारी सीटें रिक्त रहने लगी। अब इसलिए हमने सभी राज्यों को सूचित किया कि भाई आप एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाओ, कहाँ कितनी ज़रूरत है, उस तरीके से नए कॉलेज खुले और बहुत सारे राज्यों ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया है। श्रीमती विजला सतना। Actually, our versatile HRD minister knows very well that there are several suicides by IIT students in large number of IIT institutions. These students were not because of the academic stress alone. So the main reason behind it, maybe one of the reasons, is the caste discrimination between the students. So therefore, I would like to know from our Honorable HRD Minister, what are the steps taken by the Government of India, especially the Ministry, to ensure that caste determination and the caste discrimination does not take place hereafter in the IITs and prevents suicides hereafter in these institutions. Madam,
मैं एक कहना चाहता हूं कि सुसाइड के मुद्दे पर आने के पहले एक अच्छी खबर है, वो भी बताना चाहता हूं कि IITs में पहले एक दूसरा डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर, और उसमें क्या होता था, लड़कियां कम आती थी, छात्राएं कम होती थी, नंबर केवल 8% होता था। तो हमने 2 साल पहले निर्णय किया कि लड़कियों की संख्या बढ़ानी है और उसके लिए सुपर न्यूमरी ज़्यादा सीटें तैयार की है, और उसके कारण पिछले साल 8% से 9.5% तक आए। लेकिन मुझे खुशी है इस साल सुपर न्यूमरी कोटा से 840 girls have got admission, more admissions in this IIT system, and now the percentage has increased from 9% to 15%. We want to make it 20% as soon as possible. तो ये छात्राओं का सहभाग भी इंजीनियरिंग में ज़्यादा होना चाहिए, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए मैंने पहले उसका बताया। जहाँ तक सुसाइड का प्रश्न है, एक भी कहीं भी सुसाइड होती है वो गलत है और नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वो IIT में हो या किसी भी संस्था में हो, नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए हमने एक प्रोएक्टिवली काम किया है। सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सभी IITs को एक विशेष उपाय करने को बताया है कि एक 12 सूत्री कार्यक्रम दिया है कि कौन सा छात्र एक तो इंडक्शन कोर्स बढ़ाए। इंडक्शन कोर्स पहले 1-2 दिन का होता है, उसके बजाय इंडक्शन कोर्स ये अच्छा 6 दिन का या 12 दिन का हो, 2 सप्ताह का हो, जिसमें स्टूडेंट्स एक्लेमेटाइज होता है, क्योंकि विभिन्न समुदाय से, विभिन्न बैकग्राउंड से, विभिन्न ज्योग्राफी से लोग आते, उनको एक साथ होने के लिए ये जरूरी है। तो इंडक्शन एक किया है। दूसरा, जो स्टूडेंट अलग होता जाता है, अकेला अकेला रहने लगता है, उसी में सुसाइडल टेंडेंसी होती है। तो ऐसी निगरानी करने के लिए टीचर्स का भी मेंटोरिंग, एक टीचर्स का मेंटोरिंग, एक लोकल पेरेंटिंग और एक काउंसलिंग सेंटर कंटिन्यूअस। तो जो स्टूडेंट्स को लगे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे दिक्कत आ रही है, तो ही कैन टॉक टू दैट। और ये सारे 15 उपाय हैं, मैं आपको सर्कुलेट भी करूंगा। तो वी हैव सेंड 15 प्रोएक्टिव मेजर्स to be taken so that we will not have unfortunate incidents of suicide in future. Next question 170. 170. मंत्री जी, for supplementary. The government of India has said, Department of Public Enterprise has issued guideline to 2010 to 2015 on revival restructuring CPACS. Please explain what are the guidelines have been given for the revival of the Sikh industries in case-to-case basis. You have said it that case-to basis you are trying to revive the Sikh industries. In West Bengal, madam, large number of the industries are Sikh, and so many industries are viable. If there is any technical arrangements, then all this Sikh industry will be the viable. I would like to know, the Honorable Minister, what are the revival package? You kindly explain it to us. सभापति जी, सदस्य ने जो मूल प्रश्न किया है, इस प्रकार से सरकार का कोई प्लान नहीं है, किंतु जो लोक उद्यम विभाग है, इस लोक उद्यम विभाग के द्वारा सारे विभागों को दिशा निर्देश गए हैं। जितने भी सार्वजनिक लोक उद्यम है वो भिन्न भिन्न मंत्रालयों के तहत आते हैं, और ये अधिकार उन मंत्रालयों का है कि वो केस टू केस स्टडी करके यदि कोई CPSU उसके रिवाइवल के लिए अनुकूल है तो उस प्रकार के प्रयास उस मंत्रालय द्वारा किए जाए। अंत में रिवाइवल का पैकेज कैबिनेट में अप्रूव होता है, लेकिन प्रपोजल उस मंत्रालय से जाने की आवश्यकता है। Second supplementary. Second supplementary, with these guidelines, how many Sikh industries up till now reopened and functioning properly? That means your theory that you have already
ordered for a committee or for some arrangements through which you can survive the Sikh industries. If it is so, then kindly tell me exactly how many industries reopen and functioning properly, and how many workers are employed after the revival. In West Bengal, large number of Sikh industries are there. Some of them will be viable if proper attention is given to the government, or the government use any technical organization. Is not the guideline what you have said. Your guideline has been given by the Joint Secretary and Secretaries. I am not talking about the... Madam, very important talk. Because what they are writing in the file, in the technically, exactly it is something different. That's why I am saying the technical organization को use किया क्या नहीं. सभापति जी, वैसे सदस्य पश्चिम बंगाल से है तो मैं थोड़ी पश्चिम बंगाल के संदर्भ में जो जानकारी है, जो वहाँ पर जो हमारे लोक उद्यम है, उसकी जानकारी मैं आपके लिए यहाँ पर देना चाहूँगा. लेकिन शुरू में मैंने जो अपने उत्तर में कहा है कि सारे विभाग अलग अलग मंत्रालय हैं और इन सारे मंत्रालयों से जानकारी मंगाई जा रही है, और उसी तहत जो पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए CPSE है, सारे लोक उद्यम है, उसकी जानकारी में जो आज संकट में है उसकी जानकारी दे रहा हूं. जो लाभ कर रहे हैं उसकी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है. उसमें है बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. उसके डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है. ब्रिज एंड रूप कंपनी है, ये कंपनी लाभ में है, लेकिन फिर भी उसका भी जवाब देता हूं मैं. तो उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू है. हिंदुस्तान केबल जो बंद हुई थी उसको तो बंद करने का निर्णय किया है, वो क्लोजर हो चुका है. बर्न स्टैंडर्ड एंड कंपनी लिमिटेड है, इसको भी बंद करने का निर्णय सरकार ने किया है. सेंट्रल आइलैंड जल परिवहन कॉरपोरेशन है, इसको भी बंद करने का निर्णय सरकार ने किया है. हुगली प्रिंटिंग प्रेस है, उसको भी बंद करने का निर्णय सरकार ने किया है. हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसको NBCC द्वारा एक्वायर्ड करने का प्रयोजन किया गया है. तो जो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जो उद्योग है उनकी जानकारी मैंने सदस्य को यहाँ पर दी है. ठीक है, आपने अपना सवाल कर दिया. श्री अमर सिंह जी, श्री अमर सिंह जी. सिंह जी, आपने प्रश्न पूछे. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक उपक्रम घाटे में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सभी उपक्रमों की बात नहीं, माननीय मंत्री जी से सिर्फ एयर इंडिया के बारे में जानना चाहता हूं. एयर इंडिया जो महाराजा होता था, आज उसकी महाराजा स्थिति बद से बदतर हो गई है. और ऐसा किसी को अभियोग लगाए बगैर मैं कहना चाहूँगा कि निजी क्षेत्र की कई कंपनियों को मुनाफे वाला रूट देकर एयर इंडिया को क्रमशः सरह सरह बीमार किया गया है. इस बीमार एयर इंडिया के उद्धार का कोई उपक्रम हुआ है या नहीं? ये महाराजा के सिर की पगड़ी की कलगी फिर निखरेगी या इसी तरह से रसातल में पड़ी रहेगी? जी, ये जो प्रश्न सदस्य ने किया है वो एयर इंडिया से रिलेटेड है और इसके लिए अलग से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एयर इंडिया को देखती है. तो इसीलिए अच्छा होगा यदि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को कोई अलग से ये प्रश्न किया जाए तो उसकी जानकारी मिलेगी, अथवा यदि आप आदेश दे तो इसकी जानकारी मैं उनको दिला दूंगा. नहीं, आप ठीक है. मिस डोला सेन जी. Madam, we have already seen that the important, well-known and traditional industries in which many are profitable also, already mentioned by the Honorable Minister,
that the bridge and roof, Bond Standard, Hindustan Copper, Hindustan Cable, alloy steel plant, Bengal Chemical and Fertilizer, Pharmaceutical, Government India Press, etc., are being closed or are being disinvested by the central government. Very recently, my humble question through you, Madam, to the Honorable Minister is that whether Niti Aayog recommendations of reducing central government stake in non-strategic companies to below 50% has been already accepted by the central government, sir? Thank you, Madam. नीति आयोग द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं उनको हम निश्चित रूप में स्वीकार करते हैं और जिन उद्योगों की जो सार्वजनिक लोक उद्यम है जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है उनको बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं। इस प्रकार के जो लोक उद्यम है उन्हीं को हम बंद करते हैं और जो लोक उद्यम चल सकते हैं तो उनके बारे में चलाने के लिए प्रयास किया जाता है। श्री समीर उरांव जी। माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद करता हूं मुझे पूरक पूछने का अवसर दिया है। सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ के बंद देश का पहला सिंदरी उर्वरक जो कारखाना था उसको सरकार ने चालू किया है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही माननीय मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ झारखंड में केंद्र सरकार के द्वारा उनके अधीनस्थ HEC स्थापित है और वहाँ हजारों लोगों का जीवन HEC से आधारित है। आज HEC घाटे में चल रहा है, रुग्णावस्था में है। क्या सरकार इसे पुनरुद्धार एवं पुनर्संरचना के आधार पर आगे व्यवस्थित चलाना चाहती है? उपसभापति जी, सदस्य ने जो जानकारी HEC के बारे में दी वो सत्य है, वास्तव है। अब HEC को एटॉमिक एनर्जी टेक अप करना चाहती है, इस प्रकार का प्रस्ताव एटॉमिक एनर्जी से आया हुआ है, तो मैं सदस्य को यह विश्वास दिलाऊंगा यदि एटॉमिक एनर्जी इसको टेक ओवर करती है तो कम से कम वहाँ के लोगों के रोजगार निश्चित रूप में बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 विनय डेनू तेंदुलकर जी, एब्सेंट। मिनिस्टर महोदय, प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। राम कुमार वर्मा जी। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद ने जो प्रश्न पूछा उसमें मेरा सप्लीमेंट्री होगा। उससे पहले बहुत सारी मंत्री महोदय ने जो जन कल्याणकारी SC/ST के लिए योजनाएं बनाई और उनका एक आजकल डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, उसके लिए चाहे वो जनधन योजना है, चाहे मौद्रिक लोन योजना है, चाहे उज्ज्वला है, चाहे उजाला है, चाहे वो स्टैंड अप है, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार जो जन कल्याणकारी कार्य किया और उसमें SC/ST की जो गरीबी उन्मूलन के लिए हित में काम किया। आप सीधे प्रश्न पे आए। प्रश्न पर ही आ रहा हूँ, ये प्रश्न से ही रिलेटेड है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि SC/ST के गरीबी को उन्मूलन करे, उनका स्वरोजगार मिले, उनको सामाजिक आर्थिक समानता मिले। इसके लिए पहले से एक स्कीम थी कि हमारा जो बजट जो पास होता है उसके अंदर बजट का एलोकेशन SC/ST सब प्लान के संबंध में कि उनकी पॉपुलेशन के आधार पर वो दिया जाएगा। आपका सवाल क्या है? सवाल पर ही आ रहा हूँ मैडम। सवाल पर जल्द आ जाएं। उसी की 74-75 के बाद में SC/ST प्लान के तहत जो एलोकेशन हुआ उसका फायदा नहीं मिला, लेकिन नीति आयोग ने पिछले 2017 से उसके लिए एक किया कि डॉक्टर नरेंद्र यादव जी की जो रिपोर्टें थी, सिफारिश थी, उसको लागू किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है, SC/ST सब प्लान के जो पैसा होता था डिपार्टमेंट वाइज जो स्टेट के गवर्नमेंट थे उनका जो एलोकेशन होता था उसका डाइवर्जन हुआ। तो मेरा अनुरोध मंत्री महोदय से यह है कि क्या इसके ये तो बहुत बढ़िया किया है 2017 से, उसके अंदर नीति आयोग ने किया
लेकिन आप अपना वही पूछ रहा हूँ, जो डाइवर्जन हो रहा, सवाल आप इतना लंबा कह रहे हैं तो मंत्री जी भी जवाब बहुत लंबा देंगे और अन्य सांसदों का फिर प्रश्न छूट जाएगा। हमें वक्त का भी ख्याल रखना है। एक मिनट मुझे भी कम में ले रहा हूँ। मेरा सब प्रश्न ये है, पूरक प्रश्न ये है कि मैं ये चाहूंगा, मंत्री महोदय ने सारा बहुत बढ़िया किया है, क्या उसका जो डाइवर्जन पहले तत्कालीन सरकार के टाइम में उस पैसे का जो दूसरे डिपार्टमेंट जिसमें टारगेटेड ग्रुप को नहीं मिलकर के मिलता था, उसको रोकने के लिए क्या कोई किसी तरह के आपने मॉनिटरिंग या इस तरह का प्रावधान किया है क्या? सवाल पर आए बहुत देर से, लेकिन आप आए। भूमिका माननीय मंत्री महोदय। उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि जो एससी के सब प्लान का पैसा आवंटित होता है उसका लिए क्या किया है, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पहले एससी सब प्लान के नाम से जाना जाता था, अब उसको एलोकेशन फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से 17-18 से जाना गया है। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए पहले जिसमें 26 मंत्रालय थे, अब इसके 29 मंत्रालय हुए और इन सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमारे मंत्रालय को नोडल एजेंसी के रूप में माना गया और एक डैशबोर्ड के में एक पोर्टल के बीच में सभी विभागों के मंत्रालयों के ऑफिसर्स को नोडल ऑफिसर्स तय कर दिए गए हैं और उनके पासवर्ड और उनका यूज़र नेम वगैरह जो दे दिए गए हैं, ताकि कोई भी अगर कोई गतिविधि होती है, चाहे वो किसी को पैसा जारी करते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी एक्टिविटीज़ वो पोर्टल पे जारी होती रहे और उसके माध्यम से ताकि इसकी मॉनिटरिंग इसकी पूरी तरह हो सके और जो पैसा आवंटित होता है उसको सही दिशा में उसकी भी आवंटित हो जाए और सही जगह पे यूज भी हो जाए। श्री डी राजा जी। डाइवर्जन ना हो इसीलिए मॉनिटरिंग होती है। Thank you, madam. The answer refers to task force. The task force was headed by none other than our respected colleague Narendra Jadhav, and the task force was constituted by the previous government, UPA government. That was the time there was a planning commission. We had scheduled caste component plans, we had tribal sub plans. Now Niti Aayog has come into existence. No sub plans as such. The concept, the understanding of sub plans has undergone a sea change. In such a situation, the government calls schemes for welfare of scheduled castes. I understand how the funds are earmarked by the ministries, by the departments in the central government as well as in the state governments. Who monitors the earmarking of funds and implementation of these schemes? Social Justice Ministry says it has no power. Tribal Ministry says it has no power. Who has the power to monitor the earmarking of funds according to the population of scheduled castes and scheduled tribe? Who has the power to monitor the implementation of the so-called schemes for welfare of scheduled castes? I would like to know whether the ministry takes the responsibility. Who has taken the responsibility? You please answer directly. माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य जी को मैं सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि जो शंकाएं उनके मन में थी या पूर्व के उनके एक्सपीरियंस रहे, उनसे अब वो निश्चित रहें और अब आवंटित भी सही होगा और उसकी निगरानी भी सही होगी, ये आश्वस्त भी मैं दावा करता हूँ। ये मैंने आपने पहले जवाब में भी बताया कि इसकी मॉनिटरिंग इस बार हम नोडल मिनिस्ट्री के रूप में हम करते हैं और इसकी बहुत सारी मीटिंगें पहले भी हो चुकी हैं और जहां तक इसके आवंटित की बात करें अभी उसका जवाब क्यों दे हो गया ऐसा मंत्री जी ऐसा मैं सवाल का जवाब मंत्री जी अगर आपके उत्तर हो गए हैं पूरे तो आप मैं जवाब दे रहा। चलिए श्रीमती अंबिका सोनी जी। श्रीमती अंबिका सोनी जी। Under a central scheme of giving scholarships to students belonging to the SC section of our population, a certain allocation state-wise had been made. Is it correct that because of some mid-term changes brought about by the central government,
this scholarship scheme, which was going on for so many years, has been stopped. And as a result thereof, the state of Punjab, for example, has not been given this fund for the last 2 years, which amounts to 1,300 crores. And the students have been enrolled in larger numbers. Is the central government thinking again of giving at least the last 2 years' money due to the government of Punjab for the student scholarships of SC community, or are you going to sit on that money? माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये अवगत कराना चाहूँगा कि इस साल हमारी सरकार ने ये तय कर लिया है कि पिछला कोई भी किसी भी प्रदेश का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कोई भी किसी का बकाया नहीं रहेगा। ये 31 मार्च 2019 तक सारे का सारा क्लियर किया जाएगा और इसके लिए उसके लिए फंड भी जो जरूरी है जारी कर दिए गए। और जहाँ तक मैं माननीय सदस्य पंजाब से हैं और उनका सवाल पंजाब से और मेरा नाता भी सीधा पंजाब से, इसलिए मैं भी उसको पूरी तरह से जानता हूँ कि जहाँ तक उनकी रिक्वायरमेंट है, जो प्रोसेस पंजाब प्रदेशों की तरफ से आना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं जो अभी उसकी पूर्ति नहीं की गई, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं रुकावट भी आई। और अभी पीछे हमने उनको विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब को इसी महीने में हमने 327 करोड़ रुपए जारी किए हैं और उसमें ये भी तय किया गया कि जब तक नेक्स्ट में आप अपना पूरा, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम ऑडिट कर रहे हैं, जिसलिए उनकी कितनी लायबिलिटी तय होगी और उसमें कब करेंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ना होगा। मगर पंजाब की तरफ से जितना देर वो पूरा हिसाब बना के पूरी दस्तावेज पूरे नहीं किए जा सकते, उसके लिए आगे उनको और जारी ना की जा सके। मगर फिर भी मैं ये आश्वस्त करूंगा कि अगर वो पंजाब की तरफ से माननीय सदस्य उनकी तरफ से पूरे अपना जो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे, तो जो केंद्रीय मंत्रालय ने तय किया है, भारत सरकार ने तय किया कि इस बार हम कोई भी किसी का भी कोई भी एरियर पेंडिंग नहीं रहेंगे, हम ये आपको आश्वस्त करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 172 क्वेश्चन 172 अशफाक करीम जी। मोहतरमा चेयरमैन साहबा, मैं सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं कि थर्ड फेज मेट्रो सितंबर 2018 में कंप्लीट होना था, लेकिन मुझे जो जवाब मिला है वो 2020 तक गया है। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, निजामुद्दीन और पूर्वी दिल्ली आईपी एक्सटेंशन के बीच का भूमि अधिग्रहण हुआ या नहीं, और नहीं हुआ तो क्या कारण है। इसी के साथ दूसरा सवाल है कि पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन, बीकाजी कामा प्लेस और बॉटनिकल गार्डन के पास ज़मीन बनने के क्रम में, कंस्ट्रक्शन के क्रम में धंस गया, इससे उसके गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? Honorable Minister. Madam Chair, the third phase of Delhi Metro, which currently involves a total of 190 kilometers, is not experiencing any delay in construction or cost overruns. Let me just explain to the honorable member and submit that the first two phases of Delhi Metro, which started in 97 and 2011, they involved a construction of 190 kilometers over a 14-year period. The phase 2, which commenced in 2011 and is due to be completed in 2018, also involves a total construction of 180 kilometers, but is being constructed in half the time. प्रश्नकाल का समय समाप्त होता है। सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।